Hello students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in today's video we are going to discuss the unit number or we are going to start the unit number 6. Okay, we know that in every unit we will discuss about one poem and one lesson or one story. Okay, so in unit number 6 we are going to start the poem. Okay, here the name of the poem is Trains. What is the name of this poem? Trains. And have you seen the trains or have you traveled through that trains? क्या आपने कभी ट्रेन्स मतलब ट्रेन देखी है? हाँ, डेफिनेटली आपने देखी होगी और आपने वो इंजॉय भी की होगी. ओके, और आपको गाना भी याद होगा जब आप छोटे क्लास में होते थे. जुक 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 आगिन गाड़ी, धुरांचा रेषा हवेत गाड़ी. तो उस तरह के सॉन्ग और उस टाइम से ही हमें क्या एक उत्सुकता होती उस ट्रेन के बारे में, व्हीकल्स के बारे में. ओके, देयर आर डिफरेंट व्हीकल्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड. यू लर्न अबाउट दिस vehicles like train, bus, motorcycle, cycle, etc. Okay, and I think you travel through train. क्या आपने ट्रेन में बैठकर कहाँ पर आपने जर्नी की है क्या? कहाँ पर गए हो क्या? हाँ, तो कुछ बच्चों ने जर्नी भी की होगी उसमें. So dear students, today we are going to start this poem, Trains. Here, have you traveled on a train? Read and enjoy this poem. Okay, you know that I already asked that questions about have you traveled on train. आपने कभी travel किया है क्या train? Okay, first of all, I read the poem. Just listen this poem carefully. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through the day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train. Okay, here you can see very short poem. Only 4 stanzas are there, and every stanza there are only 4 lines. Means 8 plus 8, 16 lines in this poem. Okay, now I am going to sing this poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passenger, carrying mail, bringing their precious load in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Okay, this is the poem. Here you can see over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train, carrying passenger, carrying mail, bringing their precious load without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train. Okay, this is the poem. Now I am going to start the explanation of this poem. Okay, very simple poem. Here you can see in this picture of train, from which places the train would travel. कहाँ से देखो, रिवर के ऊपर से, माउंटेन के बीच से और अलग अलग जगह से हमने देखा है कि ट्रेन क्या करती है, ट्रैवल करती है. तो उसमें यही इस पोएम में हमें इसके बारे में ही बताया गया है. फर्स्ट, ओवर द माउंटेन्स. यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम द माउंटेन द ट्रेन केम फ्रॉम दिस माउंटेन. यहाँ से भी वो ट्रेन यहाँ तक आई हुई. ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन के ऊपर से. देन ओवर द प्लेन्स. प्लेन मीन्स जो प्लेन एरिया होता है उस एरिया में भी चलती है. देखो हमारे आसपास भी आपने देखा होगा कि ट्रेन के लिए ट्रैक बनाए हुए, वो प्लेन एरिया में भी है. कुछ ट्रैक जो है माउंटेन पर भी है. ओवर द रिवर्स, हियर यू कैन सी ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. मतलब रिवर के ऊपर से ब्रिजेस बनाकर भी हम ट्रेन को चला सकते हैं. हम उस ट्रेन में बैठकर भी देख सकते हैं. हमने बहुत बार देखा भी होगा कि जब आप ट्रैवल करते हो, कभी कभी वो ट्रेन
प्लेन पर से भी चलती है, प्लेन मतलब प्लेन एरिया, समतल एरिया, तो उस एरिया से भी चलती है। उसके बाद माउंटेन के ऊपर से भी चलती है, रिवर्स के ऊपर जहां पर ब्रिज बना है, डायरेक्टली रिवर के ऊपर से नहीं चल सकती। कैसे चलती है? दे बिल्ड ब्रिज, मतलब वो क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, और उस ब्रिज पर से क्या चलती है, ये ट्रेन चलती है। एंड हियर कम द ट्रेन, देखो ट्रेन आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट, कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल, bringing their precious loads in without fail. Okay, here you can see in train there are many passengers every day travel to their house or home to offices, from one place to another place, from their house to relatives house, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पर वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हम भी ट्रैवल करते, तो वो क्या करते हैं, ट्रेन हमें कैरी करती है, हमें लेकर जाती है। पैसेंजर, हम जैसे लोग जो बैठते हैं ट्रेन में, तो हम पैसेंजर हो गए, तो वो क्या करती है, ट्रेन हमें कैरी कर कर जहां पर हमें जाना है, दैट प्लेस, वहां पर हमें क्या करती है, वो पहुंचाती है। उसके बाद कैरिंग मेल, मेल मतलब बहुत सारे हमारे पार्सल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स इकट्ठा कर वो पार्सल्स अलग अलग जगह पर भेजे जाते हैं। तो उस तरह के जो मेल होते हैं, हमारे कुछ गुड्स होते हैं, मतलब कुछ सामान वगैरह होता है, तो वो भी ये क्या करती है, ट्रेन वहां पर पहुंचाने का काम करती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड इन विदाउट फेल, मतलब इतना सारा लोड, प्रीशियस लोड मतलब इंपॉर्टेंट लोड, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी, पैसेंजर्स है, मेल है, अलग अलग चीजें जैसे कि गुड। आपने देखा होगा कि बस में लोग वेजिटेबल्स लेकर जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं, तो ये प्रीशियस लोड जो है, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो विदाउट फेल, बिना रुके वो क्या करती है, हमें पहुंचाती रहती है जहां पर हमें जाना है। ओके, नेक्स्ट, thousands of freight cars all rushing on through the day and darkness, through dusk and dawn. मतलब कौन सा भी मौसम क्यों ना हो, तो थाउजेंड ऑफ फ्राइट कार मतलब अलग अलग तरह के ट्रेन्स। हमने देखे कि बहुत सारे तरह के ट्रेन्स होते हैं। कुछ पुराने जमाने में जो ट्रेन्स होते थे वो कोल के ऊपर, मतलब जो कोलसा होता है तो उसके ऊपर चलते थे। उसके बाद उससे पहले हमने देखा कि वो स्टेम के ऊपर चलते, जो भाप बनती थी, वाफ स्टेम, उससे उसके ऊपर वो चलाए जाते थे। अब न्यू जो ट्रेन्स आई वो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स है। उसके बाद आपने देखा होगा मोनोरेल, उसके बाद जो स्पीड में चलती है वो मोनोरेल वगैरह, वो बहुत सारी तरह की डेवलपमेंट होने के बाद अलग अलग तरह की ट्रेन्स आई। तो थाउजेंड ऑफ फ्राइट कार मतलब अलग अलग तरह के ट्रेन्स, और ऑल रशिंग ऑन, सभी चलते रहते अलग अलग ट्रैक पर। देखो इतने ट्रैक होते हैं, इतने ट्रेन्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो होता है ट्रेन का, बहुत सारे एक्सीडेंट हमने रोड पर देखे, लेकिन कम से कम एक्सीडेंट हमने ट्रेन के देखे। मतलब ट्रेन के जो एक्सीडेंट होते, ओनली फ्यू एक्सीडेंट्स हैपन इन रिलेटेड टू दिस ट्रेन, बहुत कम एक्सीडेंट होते। तो ये जो मैनेजमेंट है, इतना बड़ा जो नेट जो बनाया गया है ट्रेन का, तो वो मैनेज करना इतना इजी नहीं। तो थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डे एंड डार्कनेस मींस दिन में भी रात में भी, कौन सा भी टाइम हो, आपने देखा भी होगा कि दिन में भी ट्रेन चलती है और रात में भी ट्रेन चलती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, मतलब कौन सा भी टाइम क्यों ना हो, दिन का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, रात का टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग हो, तो वो क्या करती है, ट्रेन चलती ही रहती है। ओके, एंड लास्ट, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। दिस stanza we already discussed in first number stanza. Same stanzas are there, first and last stanza same. Okay, so dear students, very simple poem, hope so you understood. I am going to explain once again this poem. Here, over the mountains, over the plains, हमने देखा है कि माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, रिवर के ऊपर से अलग अलग जगह से ट्रेन क्या करती है, चलती रहती है। उसके बाद कैरिंग पैसेंजर्स कैरी करती है, मेल जो होते हैं, हमारे कुछ गुड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो सब कैरी करती है। प्रीशियस लोड्स हमारे कैरी करती है, और विदाउट फेल हुए बिना वो क्या करती है, हमारे काम करती है, प्रीशियस लोड को लेकर जाती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, ऑल रशिंग ऑन, मतलब अलग अलग तरह के ट्रेन्स वहां पर ट्रैवल करते, अलग अलग जगह पर जाते हैं। उसके बाद कौन सा भी टाइम हो, डे हो, नाइट हो,
अर्ली मॉर्निंग हो, कौन सा भी टाइम क्यों ना हो, तो वो ट्रेन क्या करती है, चलती रहती है। तो ये हम इस पोएम में हमने यहाँ पर सीखा है। ओके, अंडरस्टूड? सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर एंड टुडेज योर होमवर्क इज just read this poem one time, try to learn this poem and also try to sing this poem and write this poem in your notebook one time. Okay, so dear students, today we stop here and next video we will discuss the new words and question answer of this trains poem. Okay, thank you very much.